Hello, hi, good morning, and welcome to biology class. So today we'll discuss about pyrimidines nitrogenous bases. Okay, so in this pyrimidine nitrogenous bases, we know that these nitrogenous bases are single ring structure. Okay, so in these pyrimidine bases, there are two major bases we will found. What are those? Those are thymine and cytosine in DNA. But in RNA, we will found another two pyrimidines, that is uracil and cytosine. In both DNA and RNA, we will found common pyrimidine nitrogen base, that is cytosine is present in both DNA and RNA. But instead of thymine, the uracil is present in RNA. Okay, so you know that which type of pyrimidine bases are found in DNA and RNA. Okay, clear. Again, I am repeating. In DNA, we will found two pyrimidine nitrogenous bases, that is thymine and cytosine. But in RNA, you will found cytosine. But instead of the thymine, you will found uracil. Okay, so these these three pyrimidine bases are single ring structure. Okay, so we have to know their structure and what are the UPAC name of those nitrogenous bases. Okay, so let's see how it looks. Look at the structure of thiamine. This is the structure of thiamine. So in the structure of thiamine, you will find that I have numbering the carbon nitrogen element of this ring structure in 2 number carbon and 4 number carbon and 5 number carbon. You will find the functional group. Okay, so in 5 number carbon, you will find methyl group, and 2 and 4 number carbon position, you will find carbonyl group. Okay, so that it named as 5 in 5 position, that is methyl, so 5 methyl. In 2 position and 4 position, there is 2 carbonyl group, that's it is called 5 methyl 2,4 dioxo pyrimidine. Okay, so that it is named as like this. Like that, cytosine also have structure on carbon number 2 and carbon number 4. Okay, in carbon number 2 and carbon number 4, you will find that in carbon number 4 there is an amino group, in carbon number 2 there is another carbonyl group, so that we can say that 2-oxy 4-amino pyrimidine. Okay, so in RNA we will found uracil. Uracil is exactly similar to thiamine. Okay, so uracil is exactly similar to thiamine, but there is a small change in the structure of uracil. In the structure of thiamine, you will found in 5th position of carbon there is a methyl group. Instead of that, in uracil there is only a hydrogen is present. Okay, there is no methyl group on 5th position of carbon. Okay, so this is similar to thiamine, but lack of methyl group in 5th position of carbon. क्लियर, ये आपको पता चल गया, यही बात लिखा गया है. तो हम इससे पता क्या चल रहा है कि यूरासिल इज नॉट फाउंड इन डीएनए, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ आरएनए. ओके, सो लेट्स कम्स टू नो अबाउट sugar. Which sugar is present in the which nucleic acid? Okay, we know that there are two nucleic acid, that is DNA and RNA, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. So which sugar is present in which nucleic acid? So there are two types of pentose sugar are present in the nucleic acid. So those sugars are ribose sugar and deoxyribose sugar. Okay, so ribose sugar found in the RNA and deoxyribose sugar found in the DNA. Okay, so we will analyze the structure
of the ribose sugar and deoxyribose sugar. When you will see very keenly, then you will found that this is the 5 carbon compound of pentose sugar. Okay, on 2 number position there is OH group, but in deoxyribose sugar there is OH. This OH is replaced by hydrogen. This is the basic difference in between ribose and deoxyribose. Okay, so you have to remember, and all the structure you will have to draw and practice and remember the structure of this structure. Okay, remember the structure of DNA and RNA, or remember the structure of ribose sugar and deoxyribose sugar. Okay, so let's come to deoxyribose sugar. It is found in DNA, and the hydrogen group at 2s position of ribose sugar is replaced by hydrogen group. Hydrogen, already I have told you. Next, let's comes to we will know न्यूक्लियोसाइड. कैसे न्यूक्लियोसाइड बनता है, हाउ न्यूक्लियोसाइड विल फॉर्म, एंड वी नो दैट अबाउट two components of the DNA. Okay, that is sugar and nitrogenous bases. So when we will join those two components, one is sugar and nitrogenous bases, then we will found that the nucleoside structure. Okay, so when we will join sugar and nitrogenous bases, there is a bond in between to connect those two components. So that bond is known as glycosidic bond. That bond is known as glycosidic bond. Okay, so here I have make the structure of some purine bases, and with some pyrimidine, one pyrimidine basis, one purine basis with the sugar. Okay, so this sugar is the ribose sugar. When ribose sugar is attached to the nitrogenous bases, this is the structure it will form in the RNA. Okay, so the bond in between this sugar and nitrogenous bases is glycosidic bond, beta glycosidic bond. So like that, the pyrimidine bases also joining with the sugar, that bond is also known as glycosidic bond. But question is here, the purine base, when the purine base connected with the sugar, then how it connect? You have to remember that the ninth position of nitrogen and first position of carbon of sugar का 1 नंबर कार्बन, प्यूरिन बेसिस का 9 नंबर नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है. यही दोनों कनेक्टेड होते हैं. कनेक्टेड होके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बेटा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए कि पिरिमिडिन बेसिस में पिरिमिडिन का जो नाइट्रोजन बेसिस है और शुगर है, ये दोनों जो कनेक्टेड हैं, कौन किसके साथ कनेक्टेड, इसका भी पहला नंबर कार्बन, फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर, एंड इसका फर्स्ट नंबर ऑफ नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है. इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. क्लियर. अब न्यूक्लियोसाइड बन गया, तो यही चीज़ लिखा गया है. अब न्यूक्लियोसाइड के पास अगर दो था, शुगर था और एक नाइट्रोजन बेसिस था, उसके साथ और एक कंपोनेंट मिला देंगे. शुगर था, नाइट्रोजन बेसिस था, और एक ऐड करेंगे कंपोनेंट, उसका नाम क्या है, फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड. अगर उन लोगों के साथ मिल गया तो क्या बना लेगा बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स बना लेगा. क्या बना लेगा, न्यूक्लियोटाइड्स. कैसे बना लेता है दिखाएंगे स्ट्रक्चर में भी, और अभी लिखते हैं, देख लो. जब एक नाइट्रोजनस बेसिस एडेनाइन लिए, एडेनाइन क्या होता है, एक प्यूरिन बेसिस होता है, और एक शुगर ले लिए. कौन सा शुगर लिए, डीऑक्सीराइबोस शुगर, मतलब डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं. और एक फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड ले लिए, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएगा. उसका नाम क्या होगा, डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड. सो लाइक दैट it will form 4 nucleic acid, 4 nucleotides. Okay, so we will join the 3 components of a nucleotide. Then how it looks, it will look like this. This is the pyrimidine structure, single ring structure. This is the nitrogenous base, this is the sugar, this is the phosphate group. The phosphate group. The bond in between nitrogenous bases and sugar is known as
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। द बॉन्ड इन बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फेटिक एसिड और इन बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा? ईस्टर बॉन्ड। क्लियर। अब क्या करेंगे, सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड के साथ और एक न्यूक्लियोटाइड, उसके साथ और एक, ऐसे करके चेन बनाएगा डीएनए। तो लाइक दैट ऐसे टू स्ट्रैंड बना लेगा तो हमको 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मिल जाएंगे। फिर ये डीएनए क्या करेंगे ना, कनेक्टेड हो जाएंगे। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तभी जाके ये एक डबल स्ट्रैंड डीएनए बना सकता है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि जी जो ये स्ट्रक्चर बना रहा है, कनेक्टेड हो रहा है, कौन कनेक्टेड हो रहा है ना, एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड कनेक्टेड होता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कनेक्टेड होता है, ऐसे करके चेन बना लेता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सो डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड को देखे हैं हम, तीनों कंपोनेंट है इसके अंदर, तो इसका जो कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट जोड़ेंगे तो जो बॉन्ड होगा उसको क्या कहेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या कहेंगे बेटा? द बॉन्ड इन बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स क्या कहेंगे? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि सर वो तो बता दिए थे कि कितना नंबर कार्बन पे वो कौन कैसे जान करता था नाइट्रोजन बेसिस, लेकिन इन लोगों में कैसे कौन सा कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कौन सा कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा या क्या करेगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है सर। मतलब बेटा देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, ये है एक न्यूक्लियोटाइड, ये है एक न्यूक्लियोटाइड, ये है दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये है तीसरा न्यूक्लियोटाइड। ये सब कनेक्टेड है ना? कैसे कनेक्टेड है अच्छे से देखो। ये देखो, ये जो शुगर का 3 नंबर कार्बन, ये 1 2 3, इसका 5 नंबर कार्बन, ये इस न्यूक्लियोटाइड का 1 2 3 4 5, तो इसका 3 नंबर, इसका 5 नंबर कनेक्टेड है थ्रू ए फॉस्फेट ग्रुप, और उसका बोलते हैं वो ईस्टर बॉन्ड, 2 ईस्टर बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। और इसका कितना नंबर कार्बन खाली रहा, फ्री रहा? 5 नंबर, 5 डेज खाली रहा। और ऐसे ही करके इसका कितना खाली रहा? 3 डेज। तो जब हम एक न्यूक्लियोटाइड चेन बना लेते हैं तब एक स्ट्रैंड को कैसे लिखते हैं? 5 डेज to 3 डेज, ऐसे करके लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में यहाँ 5 नंबर कार्बन का खाली फ्री रहता है और लास्ट में जो चेन रहता है उसमें न्यूक्लियोटाइड में 3 नंबर कार्बन फ्री रहता है, इसीलिए इसको 2 एंड को लिखते हैं 5 डेज to 3 डेज एंड ऑफ 1 स्ट्रैंड। वैसे अनदर स्ट्रैंड जब बनाते हैं वैसे ही एंटी पैरेलल होगा, इसको लिखते हैं ऐसे 5 डेज to 3 डेज। हमेशा स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में जाता है ना, हमेशा 5 डेज to 3 डेज डायरेक्शन में जाता है। तो ऐसे करके दोनों न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन बनेंगे, और दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ। जब कनेक्टेड होंगे तो कौन कनेक्टेड करेगा? इस स्ट्रैंड का कौन सा पार्ट, इस स्ट्रैंड का कौन सा पार्ट के साथ कनेक्टेड होगा ना? जो नाइट्रोजनस बेसेस होंगे, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमिन, ये क्या करेंगे ना, अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ दूसरे स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। कैसे पेयरिंग करते हैं देखते हैं, है ना। सपोज दिस इज द स्ट्रैंड। मैं अभी न्यूक्लियोटाइड नहीं बना रहा हूँ, बस डायरेक्ट एक लाइन खींच रहा हूँ। ये है 5 डेज, ये है 3 डेज। इसमें क्या है ना, इसमें एडेनाइन है, ये इस न्यूक्लियोटाइड में क्या है? गुआनाइन है। और एक न्यूक्लियोटाइड जॉइन किया है साइटोसिन, और एक न्यूक्लियोटाइड कनेक्टेड है, उसका नाम है थायमिन। वैसे ही ये एक स्ट्रैंड होगा, कैसे जा रहा होगा? ये एंटी पैरेलल है, तो ये 5 डेज इस तरफ रहेगा, 3 डेज इस तरफ रहेगा, तभी जाके दोनों एंटी पैरेलल होंगे स्ट्रैंड। तो ये भी जो कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, जॉइन कैसे करेगा ना, इस एडेनाइन के साथ हमेशा थायमिन कॉम्प्लीमेंट होता है, गुआनाइन के साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट
साइटोसिन होता है। साइटोसिन के साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट ग्वानाइन होता है। थायमिन के साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट एडेनाइन होता है। तो अब क्वेश्चन आता है सर ठीक है, ये जो हम बनाए अभी, ये जो अभी नाइट्रोजन बेसिस अभी जो है ये तो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, लेकिन ये दोनों जो कनेक्टेड है इन लोगों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? इन लोगों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन जब एक एडेनाइन क्या है कि प्यूरिन, थायमिन के एक पिरिमिडिन, तो हमेशा प्यूरिन के साथ पिरिमिडिन बॉन्ड करेगा। कभी भी प्यूरिन के साथ बॉन्ड नहीं करता है। क्लियर? तो कभी ए के साथ जी कनेक्टेड होगा ही नहीं, कभी टी के साथ सी कनेक्टेड होगा ही नहीं, कभी भी ए के साथ जी कनेक्टेड नहीं होता है, कभी भी टी के साथ सी कनेक्टेड नहीं होता है। इसीलिए एक प्यूरिन के साथ एक पिरिमिडिन। आप बोलोगे सर ठीक है, हम लोग ए के साथ सी को जोड़ देते हैं, ये भी नहीं होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। आप बोलोगे सर जी के साथ टी को जोड़ देंगे, ये भी तो है एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन, नहीं बेटा इसको भी नहीं जोड़ सकते, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है एक दूसरे के साथ। तो इसीलिए जो कॉम्प्लीमेंटरी के लिए हम क्या करेंगे ना, एडेनाइन के साथ हमेशा थायमिन को जोड़ेंगे और थायमिन के साथ हमेशा एडेनाइन को ही जोड़ेंगे। लाइक दैट ग्वानाइन के साथ हमेशा साइटोसिन को जोड़ेंगे, साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानाइन को जोड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन आ रहा है सर जब तो जोड़ेंगे ठीक है जोड़ देंगे, लेकिन इनके बीच में कितना बॉन्ड होता है और कौन सा बॉन्ड होता है? मैं बोला बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और एडेनाइन और थायमिन के बीच में क्या होता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ग्वानाइन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इतना तो याद रहेगा। ऐसे लाइक दैट सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा और टी और ए के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। तो ये क्लियर है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। और इसी को एक रूल बनाए थे साइंटिस्ट चारगॉफ, सो दैट दिस इज नोन एज चारगॉफ्स रूल्स। तो इसको पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है सारा चीज़। देखो चारगॉफ्स रूल्स क्या है। एरविन चारगॉफ एक साइंटिस्ट हैं, प्रपोज द चारगॉफ रूल्स। These rules played an important role in the discovery of the double helical structure of DNA। जब आप ऐसे 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 DNA बना लेते हो ना, दिस इज कॉल्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। मतलब ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है और एक स्ट्रैंड ऐसा आता है, दिस इज कॉल्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जब भी ज्वाइन करता है, जैसे मान लो ये ए है, इस तरफ क्या होगा? टी होगा बेटा, तब भी जाके ज्वाइन करेंगे। तब ऐसे ही ये जब ज्वाइन कर लेता है इसका मतलब ये जी होता है या सी, ऐसे ये ज्वाइन कर लेता है इसका मतलब सी है, अगर जी है तो इधर अगर क्या रहेगा ना, टी रहता है तो इधर ए आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। लाइक दैट ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे दोनों स्ट्रैंड बाय कंबाइनिंग देयर नाइट्रोजनस बेस, सो दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस पेयरिंग। ओके, और ये चारगॉफ रूल को फॉलो करते हैं जैसे जब वो बेस पेयरिंग करते हैं। तो कैसे, इसके ऊपर बेसिस, इसको बेस करके चारगॉफ रूल्स को बेस करके कुछ प्रॉब्लम्स भी आता है, उसको सॉल्व भी करना है। सो ये रूल क्या बोलता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में? जब ये बेसिस जोड़ते हैं अपने आप, द अमाउंट ऑफ एडेनाइन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायमिन। एक डीएनए के अंदर जितना एडेनाइन होगा उतना ही थायमिन होगा, एंड द अमाउंट ऑफ ग्वानाइन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसाइन। जितना अमाउंट में ग्वानाइन होता है उतना अमाउंट में साइटोसाइन भी होता है। ये भी बता दिए कौन? एरविन चारगॉफ। नेक्स्ट, द सम ऑफ प्यूरिन्स। अगर हम मिला देंगे सारे प्यूरिन को, एडेनाइन एंड ग्वानाइन दो ही तो प्यूरिन बेसिस है हमारे पास, ये दोनों अगर मिला देंगे, सम करेंगे, उनका सम इक्वल होगा किससे? इक्वल द पिरिमिडिन ऑफ बेसिस, दैट इज ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी। ये भी एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस में आप मैथ कर लोगे। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ सी प्लस जी। अगर सी प्लस जी का परसेंटेज भी दिया है, डज नॉट नेसेसरीली इक्वल द परसेंटेज ऑफ ए प्लस टी। ए प्लस टी मतलब ए प्लस टी के साथ अगर क्या करेंगे ना, अगर परसेंटेज निकालेंगे वो नेसेसरी नहीं है कि वो इक्वल हो। ठीक है। नेक्स्ट, ए प्लस जी प्यूरिन और पिरिमिडिन का अगर रेशियो लेंगे तो हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्लियर? तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला बेस्ड करके आपको मैथ आ सकता है का जो प्यूरिन बेस को जोड़ दो, ए प्लस जी प्लस टी प्लस सी, मतलब दोनों को चारों बेसिस को जोड़ देंगे तो कितना परसेंट आना चाहिए? 100% आना चाहिए। तुमको इस दोनों में से कोई एक दे देगा,
2 दे देगा तो और 2 निकाल लोगे, क्योंकि एडेनाइन जितना होता है थायमिन उतना होता है, ग्वानाइन जितना होता है साइटोसिन उतना होता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो इसमें ये वाला फार्मूला। तो इसमें से कोई 2 दे देगा और 2 तुम निकाल लोगे, और ये दोनों का परसेंटेज दे देगा और दोनों का नहीं दिया होगा, तुम निकाल सकते हो 100% करके। क्लियर? प्रॉब्लम करते हैं उसी के बेसिस में। चलो प्रॉब्लम 1, इफ ए डबल स्ट्रैंड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन, तो साइटोसिन कितना परसेंट दिया? 20% दिया। कैलकुलेट द परसेंट ऑफ एडेनाइन, एडेनाइन कितना होगा पता लगाइए डीएनए में। तो आपको क्या पता है ना, साइटोसिन इज इक्वल टू गुआनाइन, गुआनाइन भी 20%, साइटोसिन 20%, मतलब गुआनाइन भी 20%। आपको फॉर्मूला क्या पता है? ए प्लस जी प्लस टी प्लस सी इज इक्वल टू 100, है कि नहीं? अच्छा, तो यहाँ देखो यहाँ मैथमेटिक्स चलेगा बेटा पूरा। तो ए प्लस जी, आपको जी तो पता है, ए पता नहीं है, तो ए ऐसे लिख दोगे, ए प्लस जी का पता है 20%, प्लस टी तो पता नहीं है, तो सी का पता है 20, तो 20 कितना 40, ए प्लस टी 40 इज इक्वल टू 100। तो टी के बदले हम क्या लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि टी को इज इक्वल टू ए हमको पता है, अमाउंट ऑफ एडेनाइन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन, है कि नहीं? तो ये हमको पता है, टी के बदले हम ए लिख दिए, तो पहले से ये था, और एक है 2a हो गया प्लस 40, 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 100। ये मैथमेटिक्स कैलकुलेट कर लोगे तो 40 इस तरफ आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 60, फिर a इज इक्वल टू 60/2, दैट इज 30% एडेनाइन। तो एडेनाइन जितना होगा थायमिन भी 30% होगा, तो क्रॉस चेक करने के लिए सारों को मिला दो, तुम्हारा 100% आ जाएगा। देखो ये 30 और एक टाइमिन 30 60, ये 20 40 100% आया। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम 2, व्हाट वुड बी द चार्ज कवर्ड बाय APGPUP C at न्यूट्रल pH। ये जो है ना, तो ये जो चार्ज किससे कैरी करता है, हमारा डीएनए हमेशा नेगेटिव चार्ज करता है, ठीक है? तो द टेट्रा न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स 4 फॉस्फेट्स, तो 4 न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो उसमें 4 फॉस्फेट होगा, 4 फॉस्फेट होगा। तो फर्स्ट फॉस्फेट ऑफ एडेनाइन कंटेन नेगेटिव चार्ज, द रेस्ट कंटेन 1 नेगेटिव चार्ज। सो द टोटल चार्ज वुड बी कितना होगा ना, 4 लगा है, कितना एडेनाइन लगा है, यहाँ देखो ये एक एडेनाइन ग्वानाइन, यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ एडेनाइन फॉस्फेट छोड़ दो, इसके बीच में लगा है ग्वानाइन यूरासिल सेटिन, 4 न्यूक्लियोटाइड, सॉरी 4 बेसिस है, 4 बेसिस के अंदर बीच में फॉस्फेट लगा है। तो इस फॉस्फेट में जो पहला लगा हुआ उसमें तो चार्ज एक होगा ना नेगेटिव, तो एक इधर से आ गया और एक इधर से नेगेटिव, तो 2 हो गया और बीच में एक है, तो 3 4 5, तो 5 टोटल चार्ज कितना आ जाएगा -5। ऐसे भी चार्ज भी क्वेश्चन पूछ सकता है। So that like that you will do more problems on the basis of Chargaff's rules, and it is very easy to calculate and to understand. Okay, so thank you, have a nice day.